नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। राजस्थान कंप्यूटर टीचर्स की जो वैकेंसीज निकली है 2022 के लिए, उसके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? ऑप्शन ए, जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक द वेबसाइट इंटरैक्टिव। JavaScript is an assembly language. No, JavaScript is not an assembly language. JavaScript is a compiled language. No, JavaScript is not a compiled language. JavaScript is a scripting language that is used to make website interactive. Option A बिल्कुल सही आंसर। Question number 52. Which of the following is correct about JavaScript? JavaScript के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Option A, JavaScript is an object-based language. JavaScript is an assembly language. JavaScript is an object-oriented language. और JavaScript is a high-level language. Which is most suitable? तो अगर आप बोलेंगे ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि JavaScript assembly language नहीं है, as well as it is not a high-level language, as well as it is not a object-oriented language. क्योंकि object-oriented language के लिए polymorphism, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता है, बट जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 53, अरेज इन जावास्क्रिप्ट आर डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? जावास्क्रिप्ट के अंदर अरेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is an ordered list of values, it is an ordered list of objects, it is an ordered list of strings, or it is an ordered list of functions. Basically, arrays in JavaScript are defined as it is ordered list of values. It is the ordered list of values. Option A is the correct answer. Question number 54. Which of the following can be used to call a JavaScript code snippet? जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉल करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? मतलब ऑप्शन ए बी सी डी, फंक्शन और मेथड, प्री प्रोसेसर, ट्रिगरिंग इवेंट और आरएमआई, दैट इज रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो हम क्या यूज करते हैं अगर हमको जावास्क्रिप्ट का जो कोड स्नाइपेट है उसको यूज करना है या उसको कॉल करना है? बेसिकली वी कैन कॉल इट बाय फंक्शन और बाय मेथड, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 इज which of the following scoping type does JavaScript use? कौन सा scoping type JavaScript use करता है? Sequential, segmental, lexical और literal? Basically, JavaScript uses lexical scoping. It means that whenever we describe variable, it is described before whenever we describe it is we describe it before the execution of code, right? Not after the execution of the snippet, right? So lexical scoping use की जाती है JavaScript। Question number 56 is what is the basic difference between JavaScript and Java? JavaScript और Java के बीच का basic difference क्या है? Functions are considered as fields. Option B, functions are values and there is no hard distinction between methods and fields. Variables are specific, there is no difference. तो JavaScript और Java के बीच में difference तो है, तो no difference is गलत। Variables are specific, ये भी गलत हो जाएगा। Functions are considered as fields, no. Functions जो होते हैं JavaScript में उनको values की तरह treat किया जाता है, और methods और fields जो है JavaScript में basically not defined well. So option B जो है वो correct answer है। Question number 57 is why JavaScript engine is needed? Basically, JavaScript engine need होता है हमें JavaScript को interpret करने के लिए। Thus, option C is the correct answer. And question number 58 is which of the following is not a framework? Basically, jQuery जो है आप बोलोगे, या Cocoa JS जो है, या JavaScript.net जो है, ये frameworks हैं। जैसे jQuery की बात की जाए तो वेब डेवलपमेंट के लिए मोस्ट फेमस जो फ्रेमवर्क है वो jQuery है। एंड इसी तरीके से विंडोज ऐप की बात की जाए तो JavaScript.net की बात की जा सकती है। बट JavaScript जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये बेसिकली हम सर्वर साइड पर भी लिख सकते हैं, क्लाइंट साइड पर भी लिख सकते हैं। तो इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
And the question number 59 is, which of the following is the property that is triggered in response to JS errors? कभी भी कोई एरर आता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जावा स्क्रिप्ट जिसके कारण जो भी एरर आ रहा है वो हमें ट्रिगर करता है, कि बताता है कि भाई एरर है इस टाइप का। तो ऑन एरर इज द मेथड और द प्रॉपर्टी इन जावा स्क्रिप्ट, जैसे कि विंडोज ऑन एरर जो है वो एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट जावा स्क्रिप्ट की, जो कि जावा स्क्रिप्ट के एरर जो है वो शो करता है। और द क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी एरर नहीं है? मिसिंग ऑफ ब्रैकेट, डिवीजन बाय जीरो, सिंटैक्स एरर और मिसिंग ऑफ सेमीकोलंस। तो अगर हम बात करें सिंटैक्स एरर जो है वो तो एरर होती है, अगर ब्रैकेट मिस कर दिए तो वो भी एरर है, और सेमीकोलन मिस कर दिए वो भी एरर है। लेकिन डिवीजन बाय जीरो की अगर बात की जाए तो इट इज नॉट एन एरर इन जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली इसको जो जावा स्क्रिप्ट है वो इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट जो है वो शो करता है, तो इट इज नॉट एन एरर इन द जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। हर सेशन में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वो जो प्लेलिस्ट है जो कि हमने राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसीज 2022 के रूप में बनाई है, उसकी लिंक यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दी हुई है। आप जाएं वहां पर सारे वीडियोस टॉपिक वाइज देखें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आने वाले समय में सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक के क्वेश्चन, सारा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस कवर करना है इधर। आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा, आप इंटरेक्टिव करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और हमारे साथ इंटरेक्टिव बने रहोगे, तो मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द आपका ये वीडियो कोर्स जो है कंप्लीट करूंगा। और आपको डेफिनेटली, आप जब एग्जाम देने जाओगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील दैट समथिंग इज यूजेबल, राइट, कि आपको यहाँ से हेल्प मिली है। बाद में मॉक टेस्ट करने की भी हम प्लान कर रहे हैं, बट इट completely depends on the positive response from your side, guys. So please do subscribe, share it with your friends, and like, comment, and stay tuned with us as much as possible from your side, and don't forget to press the bell icon button. Thank you so much. Have a very nice day. Jai Hind, Jai Bharat.